Assalamu alaikum everyone. I'm Huzaifa Jampare from Grade 8 Nagir, and this is the first episode of our podcast Throne of Reality. And we have a special guest for today. Guess who? She is a counselor by profession. She is research scholar, and she is working for the betterment of our society. So welcome, Miss Nida Zahra. Thank you. I'm so glad and I'm thrilled because I have done a lot of podcasts before, but this is my first time with a student. And I feel immensely pleasured and I'm glad and I'm happy to be here. Thank you. Thank you, ma'am, for coming. Ma'am, can you explain, share your experience in previous talks? Recently, you have done a discussion in Kashmir Wake Up. Can you please share some experience? देखो बेटा, I have done a lot of talks, ठीक है ना? Talks तब आपके useful होते हैं when you're doing something. Doing something as in it's not just the practical work. ठीक है ना? Not a job. क्योंकि what I believe that education जो है, education is not just when we think कि हाँ education, if we have to derive an education or we have to get an education, that doesn't only mean कि आपको किसी से आगे बढ़ना है, ठीक है ना? Education also means कि जो आपके tools हैं, like for example, what are your tools? Your tool is your body, your tool is your soul, your tool is your mind, ठीक है ना? जब आप इन तीनों चीज़ों को यूज़ करना सीखते हो, ठीक है ना, तब आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे आपके जो टूल्स हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, राइट? सो माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन वंडरफुल टॉकिंग टू पीपल अबाउट education or about mental health because I am a mental health advocate, like you rightly said that I'm a counselor. So I counsel kids, I counsel youth, and I love working with kids. I love working with youth. So it is not only about what you talk, it is about, and not only about what you preach, it is also about how you handle things, ठीक है ना? How you handle your tools. What are the tools? The tools are your body, the tools is your soul, the tool is your mind. तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जब आपके जो टूल्स हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं. जैसे आप अभी देख रहे हैं, आर इंटेलेक्चुअल्स आर अगेंस्ट अस. बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हमारी खुद का जो दिमाग है वो हमारे अगेंस्ट हो जाता है. यस मैम, लाइक हम कभी किसी और को मोटिवेट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो चीज़ें नहीं मिलती. लाइक आप उसके लिए क्या बोलना चाहती है यूथ के लिए कि वो कैसे अपने आप को भी मोटिवेट करे और दूसरों को भी मोटिवेट? देखो बेटा, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है. There's a lot of complaints from everyone. मैं भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करती हूँ कभी, है ना? We all complain about life, we all complain कि लाइफ अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. सो हमारी बॉडी से पहले हमारा जहन कंप्लेन करना लगता है, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट इज़ वेरी लेस. आप समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहले हमारा माइंड कंप्लेन नहीं करना चाहिए, सबसे पहले हमारी बॉडी कंप्लेन करनी चाहिए, ठीक है? आपने देखा है कि रात को जब नींद नहीं आती है, बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, ठीक है ना? तो यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी टू एक्सटेंड. यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी टू एक्सटेंड एंड देन यू डोंट हैव टू sleep. I say you have to die on the bed. ठीक है ना? What does that mean? That means कि आपने दिन में इतना stretch किया है कि if your body will not complain, ultimately your mind will complain. ठीक है? आप समझ रहे हो मेरी बात? So पहले आपका mind complain नहीं करना चाहिए, आपकी body complain करनी चाहिए. What does that mean? That means कि you have to start working, stretching, do everything. ठीक है? आजकल के बच्चों का जो मोस्टली कंप्लेंट्स है कि हम लोग we're not motivated, we're not concentrated, ठीक है? And you guys like to sit alone in the bed, alone in the room, right? तो कमरे बंद करके हाँ, है ना, फ़ोन लेके, और अब तो ठंड आ रही है, अब तो ज़्यादा ही पसंद है बिल्कुल पर्दे बंद करके कमरे में अकेले बैठ के ब्लैंकेट लेके, ठीक है ना? आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ नॉट राइट, बट
आपके लिए एक होलिस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो पढ़ाई है या रेस्ट है या आपका जो फ्री टाइम है, रिक्रिएशनल है, उसके साथ साथ मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिजिकली जिसको कहते हैं एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, या गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गेम्स को हमने शिफ्ट कर लिया है टू फोन्स, लिमिटेड टू फोन्स, ठीक है ना। सो उसको हम लोगों ने उस पर ध्यान देना है, सो दैट वी आर फिजिकली एक्टिवेटेड, है ना। एंड देन बिफोर आवर माइंड कंप्लेन्स आवर बॉडी कंप्लेन्स, ठीक है ना। जब बॉडी कंप्लेन करेगी तो खुद ब खुद हमें लगेगा कि हाँ नहीं, हम थक गए हैं, वी नीड रेस्ट, ठीक है। So my next question for the students is like, यही फिजिकल एक्टिविटीज पे लाइक दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दीज, और वो इस वजह से भी मोटिवेट नहीं हो पाते हैं और वो टेंशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे, हमारा क्या टेंशन होता है, लाइक एग्ज़ाम्स आर नियर एंड फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर पीटीएम आएगा, क्या हमारा रिज़ल्ट होगा, और उस रिलेटेड हमें टेंशन होता है। लाइक वो टेंशन आधा, एक तो टेंशन होता है कि रेगुलरली टेंशन, बट जो आधे स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसा लाइक टेंशन लेते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब उसके लिए क्या चाहिए? देखो बेटा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आप स्टडीज़ क्यों करते हो, पहले तो ये सवाल खुद से पूछना है कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, ठीक है। क्या मैं नंबरों के लिए पढ़ रही हूँ या क्या मैं कुछ सीखने के लिए पढ़ रही हूँ, या मैं कुछ सीख नंबरों, बेसिकली इट इज़, लोग क्या कहेंगे, मेरे नंबर कम आए, ठीक है ना। तो व्हेन यू थिंक कि मुझे किसी और के लिए पढ़ना है या किसी और को खुश करने के लिए पढ़ना है या नंबरों के लिए पढ़ना है, तो आई एम श्योर यू विल बी मिजरेबल। एनीथिंग यू विल नॉट डू फॉर योर सेल्फ विल मेक यू मिजरेबल, राइट। सो पहले अपना फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा बनाना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक सिचुएशन में कैसे डील करना है, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ, आई नेवर से दैट लाइफ इज़ ईजी, लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स, ठीक है ना। आप लोगों को, बिकॉज आई एम श्योर आप 8th 9th में पढ़ते होगे, आपसे आगे जो आपका एक फेस जो आपको लाइफ के साथ करना है 11th 12th में, जब आप अपने स्कूल से बाहर निकलोगे, क्योंकि आपका स्कूल एक सेफ प्लेस है, जब आप इस स्कूल से बाहर निकलोगे, दैट इज़ व्हेन द हार्डशिप्स विल स्टार्ट, दैट इज़ व्हेन यू हैव टू फेस द लाइफ, ठीक है ना। वहाँ पे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, अभी तो आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो थोड़ा बहुत आपको गार्डियंस हैं, आपको शील्ड करते हैं। लेकिन जब आप 11th 12th में आपका करियर चॉइस होगा, आपकी बाकी चॉइसेस होंगी जो आप लोगों ने खुद मिल के लेनी है, तो उसके लिए आप लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत सही होना चाहिए, राइट। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत सही होना चाहिए। तो आपकी लाइफ स्किल्स बेसिकली जो है वो आप लोगों ने सीखने हैं। तो इट डजंट हैव टू बी ओनली अबाउट योर मार्क्स, इट हैज़ टू बी, यू हैव टू कीप अ होलिस्टिक विजन कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में एक्सेल करूं या किस तरीके से मैं अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखूं, ठीक है ना। जब आप सिर्फ मार्क्स का रखेंगे तो आप, आई एम श्योर यू विल बी मिजरेबल, बिकॉज यू डोंट, मार्क्स के लिए कब तक आप काम करते रहोगे, आप समझ रहे हो मेरी बात। सो हमारा जो विजन है वो ये होना चाहिए कि नहीं, आई हैव टू लर्न हाउ टू लिव द लाइफ बेसिकली, बिकॉज योर लाइफ, आर यू लाइफ, योर लाइफ है ना, वी ऑल आर लाइफ, तो वी ऑल आर लिविंग थिंग्स, वी आर नॉट रोबोट्स, सो वी हैव टू let ourselves live the life, explore ourselves. Ma'am, like, what was the reason behind like you choose this profession rather than any other profession? What was the reason? Who motivated you to become the psychologist? बेटा, पहले तो every profession is good. आप कोई भी प्रोफेशन चूज करेंगे वो अच्छा ही है, ठीक है ना। और योर एज इज टू you're too young to decide what you want to become. कभी कभी लोग ऐसे ही कुछ भी बन जाते हैं, ठीक है ना, उनने डिसाइड भी नहीं किया होता है कि मुझे ये बनना है या वो बनना है, ठीक है। सो लाइफ अनफोल्ड्स, लेट योर लाइफ अनफोल्ड, ठीक है। इफ़ यू आस्किंग मी हाउ डिड आई चूज इट, आई हैड नो इंटेंशंस, कि मुझे पता भी नहीं था कि साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, या बिकॉज अभी तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है इसके बारे में। हम लोग जब स्कूल में थे तब इतना नहीं था, मेंटल हेल्थ को लेके इतना ख्याल नहीं करते थे, या साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। बट आई वाज ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि अगर कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है, अगर कोई हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है, ये इंसान ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, या फ्रेंड्स में आप चेंजेस देखते हैं, इमोशंस में आप चेंजेस देखते हैं। सो दैट वाज वन थिंग दैट रियली
आई वॉज क्यूरियस टू नो. तो देन जब मैं अपने कॉलेज में आई हर्ड कि इस तरीके से कोई सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाता है. सो आई वॉज एक्साइटेड कि कुछ इंटरेस्टिंग है. तो दैट इज़ हाउ माई इंटरेस्ट ग्रो इन दिस सब्जेक्ट. सो मैम, आपने अभी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम टू ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स होते हैं, उनमें कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन होता है. लाइक पेरेंट है वो एक पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, फॉर एग्जांपल एक बीमार है तो उस पर ज़्यादा दे रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो अंदर से ही सोचता है, उसको टेंशन रहती है, मम्मा आप इसको ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि ये आज के बच्चों का लाइक ज़्यादा ये है कि मम्मा पापा उनको प्यार करते हैं, हमारे सिबलिंग्स को प्यार करते हैं, हमसे तो प्यार ही नहीं करते. लेकिन इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी हमारी यूथ के लिए? देखिए, जो टीनेज होती है ना, लाइक यू आर इन दैट एज, है ना. तो जो टीनेज होती है इसमें ऑलरेडी थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है, थोड़ी सी इरिटेबिलिटी होती है, थोड़ा सा इमोशनल डिसरेगुलेशन, ऑलरेडी इट इज़ इन द एज. बट जब बाकी फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कोई और बच्चा आ जाता है, तो दैट मीन्स आपकी जो सल्तनत थी, ठीक है ना, आपका जो एरिया था, उस पे किसी और का भी कब्जा आ गया है. ठीक है. तो लेकिन जब आपके पेरेंट्स की बात आती है, इट्स अ टू वे प्रोसेस. ठीक है. एक आपके पेरेंट्स के आपके लिए कर रहे हैं, एक आपके अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं. देयर इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रेज मैं कहूँगी कि दे से कि कनेक्ट टू रिकनेक्ट एंड रीडायरेक्ट. व्हाट डज दैट मीन? कि जब आपका दूसरा भाई या बहन आता है तो आपके पेरेंट्स का जो थोड़ा सा जो जहन है उनका, वो उनकी तरफ चला जाता है. ठीक है ना. तो आपसे थोड़ा सा वो क्या हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है ना. तो बिजली चली गई कहीं पे, वो तार निकल गई, तो हम क्या करते हैं, निकली हुई तार को फेंक तो नहीं देते, हम उसको क्या करते हैं, वापस कनेक्ट करते हैं. तो अगर आपको कोई शिकायत है अपने पेरेंट्स से, तो दैट मीन्स उनका जहन आप लोगों ने थोड़ा सा अपनी तरफ करना है. टैंट्रम से नहीं, बच्चे करते हैं. जैसे दूसरा बच्चा होगा तो वो भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चे, लेकिन किस तरीके से, कोई चीज़ तोड़ देंगे कि मेरी माँ मेरी तरफ देख ले, या मेरा बाप मुझे डांट ही दे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो गया है. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू कनेक्ट बैक. अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. ठीक है ना. अपने भाई बहन के साथ, जो छोटा भाई बहन आया है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, सो दैट यू कैन कनेक्ट अगेन. एंड देन आप अपने, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मिसकम्युनिकेशन है. जब आप अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करें, क्योंकि आजकल ये सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है, जो बच्चों का जो डिस्कनेक्ट हो गया है पेरेंट्स के साथ. अनफॉर्चुनेटली it's a huge pandemic for us, or if it is not addressed on time, it can create a lot of problems. ठीक है. because I see kids, दिन में I hear their stories, तो I know they come with these stories कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं, हमारे जनरेशन गैप हमेशा से है, जनरेशन गैप हैज़ टू बी देयर. लेकिन द प्रॉब्लम इज़ नॉट द जनरेशन गैप, द प्रॉब्लम इज़ द डिस्कनेक्शन. इट कैन बी मैनी अदर फैक्टर्स. पेरेंट्स भी बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ्स में, फ़ोन्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं. लेकिन दोबारा से कनेक्ट करना और उन चीज़ों को कम्युनिकेट करना, अपने पेरेंट्स के साथ बात करना. ठीक है. जब आप छोटे थे, जब आप बोल नहीं पाते थे, तो आपके पेरेंट्स तब भी आपको समझ पाते थे. आप बोलते भी नहीं थे, लेकिन उनको पता लग जाता था कि आपको भूख लगी है ना. तो पेरेंट्स को भी, आई एम श्योर पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, क्योंकि इट इज़ देयर फर्स्ट टाइम एज वेल. उनका भी, जैसे आपका फर्स्ट टाइम है टू डील विद ऑल दिस, इट्स देयर फर्स्ट टाइम एज वेल. तो जब आप कम्युनिकेट करोगे, उनको भी पता लगेगा, हाँ मेरे बच्चे को ये चीज़ महसूस हो रही है. दैट इज़ वाई वी कंसिडर मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट. वी हैव टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. हम लोगों को बात करनी है कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, या बाउंड्रीज़ के बारे में, मुझे कहाँ पे ना बोलना है, मुझे कहाँ पे हाँ बोलना है. ठीक है. सो what you have to learn is that you have to connect. जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगेगी ना, देखो बेटा, हम सब, we are all human beings and we all feel the same. जिस तरह आप फील कर रहे हो उस तरह मैं भी फील कर रही हूँ. मुझे लगेगी मैं भी रोऊंगी, आपको लगेगी आप भी रोगे. कुछ अच्छा होगा मैं भी खुश होंगी, आप भी खुश होगे. सो हमें ये इस ग्राउंड पे काम करना है कि we all are human beings, और हम एक ही तरीके से फील करते हैं. और अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात करूँगी तो वो भी
समझने की कोशिश करेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट. थैंक यू मैम, ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया है अपने व्यूवर्स के लिए भी और मेरे लिए भी. और अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि स्कूल्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि एक टीचर स्टूडेंट्स को सिखाए कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने हैं फ्यूचर में. अभी तो हम ही अब फ्यूचर बन रहे हैं हमारे सोसाइटी के लिए, और हमें इस चीज़ पे ज़्यादा लाइक मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा इश्यूज आते हैं और इस चीज़ पे हमें ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए. लाइक टीचर्स को क्या करना चाहिए जिससे बच्चा भी मोटिवेट हो जाए और उसको भी बुरा ना लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे स्कूल में भी. कुछ ऐसा आना चाहिए आई गेस हमारे स्कूल्स में भी. देखो बेटा, डेटा के अकॉर्डिंगली 1 among 6 यूथ, ठीक है ना, इज अंडर मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ठीक है ना. सो दैट मीन्स कि आपका जो ऑनसेट होता है, जो स्टार्ट होता है किसी भी जहनी अमराज का, वो आपका टीनेज में ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ क्रिटिकल इज दिस एज एंड हाउ मच सपोर्ट एंड गाइडेंस दिस एज नीड्स, ठीक है. और सबसे ज़्यादा वक्त जो आप स्पेंड करते हो वो आप स्कूल में स्पेंड करते हो, ठीक है ना. सो स्कूल इज कैन प्ले अ वंडरफुल रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ. और अगर ये चीज़ें ट्रीट नहीं हुई तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर लर्निंग, इन योर होलिस्टिक ग्रोथ, ठीक है ना. तो स्कूल में इट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन स्कूल. और आई बिलीव कि टीचर्स को भी, अथॉरिटी को भी, स्कूल अथॉरिटी को भी एक पहले फॉर एग्जांपल एक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे वी आर वेरी फार फ्रॉम इट, पहले तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके लिए, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या मुझे इस चीज़ के लिए बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में हमारी बाउंड्रीज क्लियर नहीं. इसलिए जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर डूइंग अ सीरीज ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट. कॉर्पोरल पनिशमेंट बहुत पहले माना जाता था कि सिर्फ मार पिटाई, लेकिन कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ नॉट ओनली मार पिटाई, इट्स नॉट ओनली फिजिकल अब्यूज़, बट इट इज़ ऑल्सो इमोशनल अब्यूज़, ठीक है. इमोशनल अब्यूज़ एज इन कि जैसे स्कूल में बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे बच्चों को बुली किया जाता है, दूसरे बच्चों से बुली किया जाता है, या बहुत सारे टीचर्स भी बुली करते हैं, या पनिशमेंट दिया जाता है इस तरीके से, आइसोलेट किया जाता है बच्चे को, जहाँ पे एक बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो क्रश हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना. तो वो ये जो चीज़ें हैं ये टीचर्स को भी समझनी है, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए. और हर स्कूल में आई थिंक एक काउंसलर, एक गाइडेंस के लिए एक, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इट शुड बी एन ओपन डोर फॉर यू, कि जिसके पास आप जाके अ पर्सन एटलीस्ट जिसके पास आप जाके अपनी सारी जो यू वेंट आउट इन फ्रंट विदाउट एनी जजमेंट्स एंड विच इज़ कॉन्फिडेंशियल एज वेल. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 1-on-1 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. इंडिविजुअल बेस्ड सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप बैठ के काउंसलर के साथ बात करें, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं. या बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं बेटा स्कूल में, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, या बहुत सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, जिनकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. जैसे ADHD है या ASD है, ठीक है ना. ये ऑटिज़म वगैरह बच्चों में आपने देखा होगा, हम एक abnormality का नाम देते हैं उसको, है ना, which is not right. They are specially abled children, ठीक है ना. उनको एक बहुत एक केयर की ज़रूरत होती है, और उनके लिए वैसे ही ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक नॉर्मल जो अनट्रेंड टीचर होगी वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, ठीक है ना. तो वो बहुत ज़रूरी है. आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, या बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बहुत कम होती है. तो उनका असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेबल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि वो उसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, या वो कम मार्क्स है. उसको कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है ना. कम मार्क्स आ रहे हैं ठीक है, लेकिन कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं वो एक देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि इट्स नॉट ओनली द स्कूल. आप बाहर भी जा रहे हो, आप ट्यूशन भी जा रहे हो, आप घर में भी हो, क्या घर में कोई प्रॉब्लम है, क्या ट्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई साइको सोशल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी ये जो आप स्कूल में अच्छी तरीके से ये जो आपका परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, राइट. तो इट हैज़ टू बी अ हॉलिस्टिक थिंग. आपको सारी चीज़ों को लेके समझना है कि क्या प्रॉब्लम है,
ठीक है ना, तब जाके आप प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। So, ma'am, I have another question related to youth, related to the teenage. आजकल क्या है बच्चों में कि उनको लाइक फीलिंग्स आ जाती है किसी और के लिए, और वो कुछ और समझते हैं, लाइक पेरेंट्स से दूर उससे भी वो हो जाते हैं कि नहीं, अब हमारे पेरेंट्स नहीं है, बस हमारे पेरेंट्स का साथ इतना ही था, अब हमारे साथ कोई और आ गया जिसके लिए हमारी फीलिंग्स आती है। लाइक उस चीज़ के लिए क्या होना चाहिए? लाइक हमें अभी तक हम जब बचपन से लेकर अभी तक जितने भी हम बड़े हैं तब तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, लेकिन अभी बीच में कोई आ रहा है और हमें उसके लिए फीलिंग्स आ रही है, लाइक ऐसा क्यों हो रहा है? और ये जो बच्चे हैं इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? लाइक कैसे अपने पेरेंट्स के साथ भी रहना है और कैसे मेंटेनेंस हमें ये करनी है, लाइक बाउंड्रीज होती है, कैसे हमें उसके अपोज नहीं जाना है, हमें अपने पेरेंट्स के साथ भी रहना ज़रूरी है, बिकॉज टीनेज में ऐसा कुछ होता है, फीलिंग्स आ जाती है बहुत सारों के लिए। देखो बेटा, हमारी लाइफ जो है ना, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स, ठीक है। हमारा पहला एनकाउंटर किसके साथ होता है लाइफ में? पहला एनकाउंटर किसके साथ होता है? पेरेंट्स के साथ होता है ना। तो जैसा हमारा पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट स्टाइल्स बोलते हैं उसको, जैसा हमारा पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट स्टाइल होगा ना, वही अटैचमेंट स्टाइल हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा। आप समझ रहे? पहले इस चीज़ को आप समझना कि क्या है। एक हो गया अटैचमेंट स्टाइल। दूसरा, अगर बचपन में कुछ चीज़ें का वॉइड रहा हो, कुछ चीज़ें आपको ना मिली हो, मे बी एक प्रॉपर केयर ना मिला हो एज अ चाइल्ड, या आपको इग्नोरेंस मिली हो, या आपको आपको अटेंशन नहीं मिली हो, आपको प्यार ना मिला हो, तो बहुत से ऐसे चांसेस हैं कि आप व्हेन यू आर इन योर टीनेज यू विल फॉल फॉर समवन, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी है। इंसान हमेशा वही चीज़ मांगता है। मुझे अभी प्यास लगी होगी तो मैं पानी मांगूंगी, अगर मुझे प्यास नहीं लगी होगी मैं पानी नहीं मांगूंगी, राइट। सो इंसान हमेशा वो चीज़ मांगता है जिस चीज़ की उसको कमी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स के जब अगर इन केस ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे प्रॉब्लम है फैमिली में, या बच्चे को वो चीज़ें नहीं मिली हो, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ठीक है। ये ऐसे नेगेटिव ख्याल जहन में आते हैं और वो उस प्यार की खोज में निकल जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर हमें थोड़ा सा अटेंशन किसी से मिलता है, किसी लड़के से या किसी ऑपोजिट सेक्स से, तो हमें लगता है कि वाह, वैसा तो कभी हुआ नहीं मेरी ज़िंदगी में, ये इंसान मुझे इतना ध्यान दे रहा है। और इवेंचुअली क्या होता है? इवेंचुअली यू फॉल आउट ऑफ इट, बिकॉज वो चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती है। वो चीज़, क्योंकि यू डोंट लव योर सेल्फ एट दैट मोमेंट, यू लव दैट आइडिया, यू लव दैट जो वो अगला इंसान आपको अटेंशन दे रहा है वो आपको पसंद आ रही है। आप समझ रहे हो? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट लव योर सेल्फ, ठीक है ना। अपना जो सेल्फ एस्टीम है, अपना जो सेल्फ लव है, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको कहीं ना कहीं उस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग। वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर फुल ऑफ इमोशंस। हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, हेट्रेड भी है, सब कुछ है, ठीक है ना। बट हाउ वी हैंडल इट, हमारे अंदर इमोशनल डिसरेगुलेशन नहीं होता। लाइकिंग समबडी इज़ नॉट रॉन्ग, बट देन हाउ वी जो हम उसको रेगुलेट किस तरीके से करें, जो हमारे जो इमोशंस अगले इंसान के लिए, उस इमोशन को किस तरीके से रेगुलेट करें। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम अभी देख रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ किड्स व्हेन दे आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ हार्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर, कि हाँ हमारा जी प्यार नाकाम रह गया, तो हमारा ब्रेकअप हो गया, तो हम लोग बस दुनिया ख़त्म हो गए। सो बिकॉज देखो, बच्चे की भी गलती नहीं है, क्योंकि there are a lot of experiences that you have to go through to basically know what life is about. लेकिन उस मोमेंट में हमें लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई। अगर आप इमोशनली अपने इमोशंस को अगर आप रेगुलेट कर पाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता यू कैन बी एबल टू कम आउट